Assalamu alaikum everyone. This is Amar bin Salim. I'm the head of marketing with Beacon House International College. Welcome to another episode of Big Podcast. As you know, we are seeing you from Karachi these days, and here we are here for some conversations with some of the most beloved A-level and Cambridge teachers. We've been talking about student life. We've been talking about the apprehensions that students have. If there are any worries that the students go through during these days, especially when it's the exam time, and what are some of the career routes that emerge that pop up when you graduate with certain subjects that you have taken in your A level and all, some of the career options, some of the university options in terms of your undergraduate education. So inshallah ta'ala, with this podcast, we hope we'll be able to provide you some guidance with regards to that. And for today's conversation, I'm truly privileged to be in the presence of one of your very, very beloved mathematics teacher, Mr. Zishan Jaka. जाका साहब अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम, कैसे हैं हमारा आप? मैं बिल्कुल खैरियत से. Thank you very much for finding Thank you time for out for having us. me over here, and it's also a pleasure to be here and talking to an audience which is across Pakistan. So yes, absolutely. Yes, across Pakistan. Alhamdulillah. Yeah, that's different. It is for me. It's a more a diversified audience, more outreach. So that's good. Inshallah, because it's not just Karachi, of course, but it's going to go everywhere. That's बल्कि अब तो मुझे लगता है with the onset of technology, it just goes beyond even the borders too. Pakistan. Yeah, it does. It might not be relevant enough because we will talk about circumstances that we will have in our country. But yes, people will. It can go. It can reach outside as well. There are Pakistanis abroad who might, be looking into what's going on in our country. Inshallah. That can go. It can go. It can cross borders. Yes. So only the good things about Pakistan today. Yeah. Okay. So there are ups and downs in every country. So yeah, it's just how it is. It has become a norm now. Yeah, it's just how it is. As Zishan said, so before we delve into a very relevant A-level specific, O-level specific, math specific questions that we have planned for the podcast, our audience would like to know a bit about your upbringing, your O-level, A-level, your what happened after that, your career. How did you decide to be a teacher and all? So if you could start with that. Well, it does interest me. I don't know whether it will interest the audience. Me as well. I was just a student like every student nowadays. I did my O-levels from City School, Daraksha campus. And I did my A-levels through Avicenna, but I studied through Avicenna, but I gave it privately. Right. And we used to have A-levels for 2 years complete at that time. We didn't have AS and A2, two different levels at that time. ही exams होते थे सारे for क्योंकि ये जो चीज़ introduced हुई है ना AS और A2 की, they created 2 levels because the universities wanted some authentic grade to give an admission. Right. Not based on the school reports. They were having problems. So this is the rationale behind AS level exams. That's how it worked. Basically, the universities used to call out to colleges to give them a transcript. Yeah. And based on the transcript, students used to get admissions. But that transcript and the final results used to, जहाँ तक मेरा है कि they were fluctuating a lot. Variance ज़्यादा आ रही थी. तो students, universities and Cambridge basically got into, some understanding. Yearly testing. Please provide us a result if you can, or some sort of an idea what sort of a student is. So they created 2 levels. They broke it down. Sub-subjects में यही हुआ है. The components have broken down. Yeah. And you give part of the A levels in the first year. You give part of the A levels in the second year. Yeah. एक misunderstanding या एक knowledge student को होती नहीं है when he transfers from O levels to A levels. Is that AS and A2 are 2 parts of one level, which is A levels. So at the end of the day, you're just doing A levels. You're not doing 2 different levels. Yeah. आप उसको basically break down कर दिया. Right. Student वो सोचता है आकर के first year सही है यार, he comes to a new environment, new college. Normally people do. Yeah. So when they go into a new college, वो एक environment को explore करने में, understand करने में, नई relationship बनाने में, नया अपना एक presence बनाने में एक college में, वो जितना time लगाता है और पहले साल में इतना serious नहीं होता, तो पहले साल अगर serious नहीं होता और results drop होते हैं, वो बोलता है मैं अगले साल कर लूँगा. That's not how it works. Because first year के जो आपके grades और raw marks हैं, वो आपके सेकंड ईयर के ग्रेड्स और रॉ मार्क्स के सेकंड ईयर के मार्क्स के साथ एग्रीगेट होंगे, टोटल अप होंगे और फिर आपको ए लेवल्स की सर्टिफिकेट मिलेगी. राइट. So if you mess up the first year and you don't get good marks,
I mean, you do wonders in the second year as well. It's not going to get you a grade desired. मतलब एक second year में आपने बोला यार मैं serious हूँ और वाकई में आप serious हो. Yeah. And जैसे हमारा math होता है, it's for 125 marks in total for 2 components combined. Okay. तो स्टूडेंट बोलता है सर आप देखिए आप मेरी परफॉर्मेंस देखिए मैं 110 मार्क्स आउट ऑफ 125 ला रहा हूँ. I mean, a student who's getting 110 marks out of 125 in the second year should at least get an A or A star. But if he's hanging on to his AS grade, which is a C or a D, the maximum he can push is 2 grades up. Like so he'll end up with a B. So he will not get what he basically desired. फिर वो बोलते हैं सर हम एक्सेल दे देंगे, हम नवंबर में रीटेक दे देंगे. Those are always very very bad options. Very very bad options. स्टूडेंट उस वक्त उसको कैलकुलेट नहीं करता. अक्टूबर नवंबर में जब वो बोलता है I'll give a retake. I mean, this is explaining the A-level program. Those who are students who are coming from O-levels to A-levels are basically going to go through this. Right. So एक understanding कि यार पहले साल अगर मैं serious नहीं हुआ तो क्या होगा. I mean, O-levels में तो ऐसा होता है ना कि first year you give Pak Studies, Islam and then Urdu. The O-level student has to understand कि आप वो 3 अलग subjects दे रहे हो. Next year आप 5 या 6 अलग सब्जेक्ट्स दे रहे हो. So they're different subjects altogether. They do not affect each other. कि नहीं पाक स्टडीज में बी आया तो इस्लामिक में भी बी आएगा. They are independent, right? पर जब वो A levels में आता है, yes, the subjects are independent, but the 2 years are connected. They are interlinked. बिल्कुल. तो first year if you mess up and you think you're going to give a retake in the October-November session, that does not work smoothly because if you do that thinking कि हाँ मुझे थोड़ा सी और जान मारनी है मैं रोज 1 घंटा भी अगर निकाल लूँ अपने A2 के while doing A2 because he's going to obviously he did not fail AS. He got low grades and he's continuing with A2 and saying कि यार मैं AS के पेपर्स को रीअपेयर करूँ अक्टूबर नवंबर में और मैं सिर्फ 1 घंटा निकालूंगा तो मेरा A2 अफेक्ट नहीं होगा. ऐसा रियलिटी में होता नहीं है. I've been teaching in colleges for the past 15 years almost and इस तरह नहीं होता. आप स्टूडेंट को देखते हो कि वो एक रीटेक दे रहा है तो वो एक रीटेक भी दे रहा है ना तो उसका टेंशन ये होता है कि मुझे इस पेपर को सही करना है अपना. ठीक है. Obviously आजकल सिर्फ studies is not the only thing. Colleges at least in Karachi that I've seen is they've excelled in sports. So I mean sports के avenues बढ़ गए. Colleges that do not have enough space, I mean internally वो externally grounds book करते हैं and they give the exposure to the student. They give the availability to the student. If let's suppose he wants to play football, so he will get the chance to. He will have the opportunity to, which he might not have gotten in his O-level school. Because O-level campuses are restricted. And if let's suppose they are not restricted, ground जो है वो utilize. I mean एक ground होता है between 11 classes, 11 levels and multiple classes. तो वो एक ground में एक बच्चा कितना time on an average गुजारता है besides his break. तो जब A levels में आता है तो opportunities बढ़ जाती है. Colleges invest in students and वो इन्वेस्ट इस तरीके से करते हैं कि वो स्पोर्ट्स के एवेन्यूज़ क्रिएट करते हैं. जैसे रोइंग करनी है तो इंडोर रोइंग एंड आउटडोर रोइंग बोट क्लब पे होती है. तो आई मीन क्रिकेट के लिए ग्राउंड्स बुक होते हैं. काफ़ी सारी लीग्स होती हैं इधर एंड कॉलेजेस का आपस में दे हैव अ वेरी हेल्दी कंपेरेटिव एनवायरनमेंट. तो जब देयर आर सो मेनी थिंग्स. स्टूडेंट जब AS का ख़राब करता है अपना ग्रेड या डिजायर्ड रिजल्ट्स नहीं आते हैं और वो A2 में रीटेक के चक्कर में जाता है कि आई हैव टू अक्टूबर नवंबर में रीसेट कर लूँगा इसको एक पेपर से क्या होता है. हैविंग सो मेनी थिंग्स इन लाइन. सेकेंड ईयर में यू हैव यूनिवर्सिटी की एप्लीकेशंस टू लुक फॉरवर्ड. आपको अगर लेट्स सपोज लोकल यूनिवर्सिटीज़ के ऊपर जाना है तो लम्स के लिए आपको SATs देने हैं, SAT देना है और आपको IBA जाना है तो IBA के लिए टेस्ट देना है. नर्स जाना है तो ECAT देना है आपको और आपको मेडिकल में जाना है तो MD CAT देना है. तो आई मीन those tests are also very vigorous, so I mean you need to prepare for them. So second year you have so much to do. I mean you have to be in college, you have to be seniors to your juniors. You have to be council members, you have to organize stuff and you have to be in a lot of things. Then you have your A2 study content as well. A2 की
मॉक्स तो आगे जाकर आता है, मगर A2 की खुद की भी आई मीन द जो लेवल ऑफ डिफिकल्टी है वो AS से काफ़ी ज़्यादा लेवल ऑफ स्टूडेंट इंक्रीज करती है. एंगेजमेंट भी. O levels to A levels is a good jump, Yeah, but it's a AS से A2 is a very huge jump. I mean, significant yeah, transition. significance level में. I mean, अगर हम मैथ की बात करें ना, अगर let's suppose, तो AS में we do pure math 1 and A2 में we do pure math 3. I mean, vast difference. Yeah. I mean, calculus दोनों Been में होती there, है. done that. मगर आप AS की calculus को देखो Yeah. और A2 की calculus को देखो तो बहुत it's a world apart. Yeah, yeah. P3 is a whole I ball game. mean, yes, I mean trigonometric identities की अगर मैं मिसाल लूँ, AS में there are 5 identities. I mean अगर इसको थोड़ा सा switch करके, वरना तो technically 2 ही हैं. और A2 में जाओ तो they expand into like 40-45 identities. Right. So एक trigonometry में इतना बड़ा जंप आता है, स्टूडेंट को समझाया जाता है. I mean there are multiple things. तो resetting an exam, what I've seen in students is कि वो फिर distracted रहते हैं क्लास में. वो असाइनमेंट्स टुवर्ड्स द एंड, क्योंकि उनको लगता है अक्टूबर नवंबर है, टेक्निकली वो अक्टूबर के शुरू में होता है, तो वो अगस्त में तो सही चल रहा होता है, सितंबर में बोलता है सर अब मेरा 1 महीना रह गया है. ऑब्वियसली उसने अगर लो ग्रेड लाया तो उसका मतलब वो पढ़ा नहीं है. अब वो AS की पूरी जो साल की स्टडीज़ है जो ही हैज़ टू डू इन लाइक 9 months स्टार्टिंग फ्रॉम सितंबर, ही इज ट्राइंग टू कवर दैट अप इन 2 months टेक्निकली, बिकॉज अगस्त में उसका रिजल्ट आया है. मिड अगस्त में उसने डिसाइड करा कि यार मैंने रीसेट करना है. लेट अगस्त की तरफ वो सही टीचर उसको मिलेगा या सही डायरेक्शन मिलेगा कि हाउ टू गो अबाउट. सितंबर है, हाफ ऑफ अक्टूबर है, सो यस 1.5 months टू कवर दिस इंटायर AS. तो वो जो सोचता है ना कि मैं 1 घंटा दिन में दूंगा, वो 1 घंटा नहीं देता, और 1 घंटा दे ना दे, 2 घंटे दे, 3 घंटे दे, फिर उसका माइंड उसी तरफ चल रहा होता है, यार 1.5 महीने बाद तो मेरा वापस एग्जाम है और मैं AS सही नहीं करूँगा तो मेरा A2 पढ़ने का क्या फ़ायदा है, विच इज़ वैलिड. जो कि हम उसको शुरू से समझाते हैं कि भाई अगर आपने AS सही नहीं करा तो A2 में करोगे क्या. वो उसको ख्याल बाद में आता है. तो उसमें होता क्या है कि वो अक्टूबर के मिड तक, लेट अक्टूबर तक वो या तो क्लास में जोन आउट हुआ होता है या तो वो फिर एब्सेंट होना शुरू हो जाता है. इरेगुलरिटी बढ़ जाती है. उससे होता क्या है, हम जो अगस्त से लेकर अक्टूबर के एंड तक पढ़ा लेते हैं वो सारा उसको आता ही नहीं है. और P3 भी कनेक्टेड है काफ़ी हद तक. आई मीन 7 chapters आर कनेक्टेड लाइक दिस. जैसे एक मिसाल है, एक आइट्रेशन एक टॉपिक है, न्यूमेरिकल सोल्यूशन ऑफ इक्वेशंस, जिसको हम आइटरेटिव मेथड से करते हैं. उसके क्वेश्चंस अगर आप देखो तो उसमें बहुत सारी चीज़ें एप्लीकेशन, कभी उसमें सर्कुलर मेजर लग रहा होता है, कभी डिफरेंशिएशन, कभी इंटीग्रेशन. अब आप बोलो कॉम्प्लेक्स नंबर टुवर्ड्स दी एंड है, तो कॉम्प्लेक्स नंबर्स तो जब स्टूडेंट करेगा जब उसको पॉलिनॉमियल्स का आइडिया होगा, क्योंकि कॉम्प्लेक्स नंबर्स आर बेसिकली कॉम्प्लेक्स सॉल्यूशंस तो आप किसी चीज़ को सॉल्व करने से ही निकालते हो ना. उसमें जो आर्गुमेंट है वो ट्रिग्नोमेट्री से रिलेटेड है. उसके जो डायग्राम्स हैं, उसके डायग्राम्स आर रिलेटेड टू क्वाइट अ लॉट ऑफ थिंग्स. उसमें लोसाई आ जाता है, उसमें काफ़ी सारी चीज़ आ जाती है. तो टेक्निकली स्पीकिंग ये सारा कनेक्टेड होता है. और जब वो नवंबर में रिफ्रेश होकर आता है कि हाँ मेरा AS हो गया, प्लीज़, अब वो एक नई स्टोरी में पड़ जाता है कि यार ये क्या हुआ, मैंने तो सारा मिस आउट कर दिया. तो चीज़ें टाइम पे हो तो वो हो. अब हमारे ज़माने में ये नहीं होता था. जैसे I'll come back to what I was saying, we used to have A levels 2 years, 1-2 साल के बाद एक ही एग्जाम, which was technically tough compared to nowadays. I've studied it and I'm teaching today, so it's a hell of a difference. I went 2 through साल the के same बाद experience. आपने इतना सारा एक साथ करना करना आजकल के स्टूडेंट्स के लिए ईजी है. वो दे गिवन पार्ट्स. कोई भी चीज़ पार्ट में करना इज ऑलवेज ईजियर देन गिविंग इट इन फुल. एंड देयर इज नॉट जस्ट वन सब्जेक्ट ना, सबके साथ पूरे सारे सब्जेक्ट. ऐसा ही है. अच्छा, when I did my O levels and A levels, I was an engineering pre-engineering student, so I had physics, chemistry, and accounts, and I had math in O levels. And A levels में I had math and accounts along with general. अब हुआ क्या कि I gave my A levels, I cleared it, and then I went for CA. I wanted to become a chartered accountant actually. That was because my maths, no matter how good it is, my accounts was better. अब तो नहीं है, ऐसी बात है. But so I was basically I was with the mindset of doing an accounts major. Okay. I mean, doing anything with finances and the ledgers and everything was my basic hobby. Right. आप कह सकते हो. I used to I had a passion for accounts. I used to enjoy it so much. I used to enjoy math as well. So I started with getting into ICAP, finding an institute, and going into do CA. Yeah. But एक बहुत ही
आगे भी स्टूडेंट्स को काम आएगी. सम स्टूडेंट्स आर नॉट गुड विद नंबर्स. सम स्टूडेंट्स डू लैक विद मैथ. एंड एज अ मैथ टीचर मुझे नहीं समझ में आता कि उनको मैथ में प्रॉब्लम क्यों आती है. बट सम स्टूडेंट्स डू लैक इन मैथ एंड दे लाइक कि हम मैथ में फंसते हैं, हमारे को मैथ समझ में ही नहीं आती. I mean, to some extent, I would understand that because I'm not good with words. Okay. I mean, you can ask me to speak, and I can speak hours and hours. I can write a lot of words, but when it comes to economics or business communication, and especially economics, I do not understand anything. तो मैं जब सीए में गया तो बड़ा इंटरेस्टिंग था कि मैं तो गया था विद पैशन. गया चार्टर्ड अकाउंटेंट का काम क्या है? ऑडिट करना, टैक्स. Tax is again calculations, right? Math, Audit is going through a lot of stuff. हाँ, end में audit report होती है, audit report होती है, but again, if I'm not good with words, audit report कोई और लिख लेगा यार. I have to be good with the financial ledgers. मुझे तो financial ledgers के साथ I have to be good with it, right? मैं जब वहाँ गया तो उसमें पहले साल जो कोर्सेज थे उसमें इकोनॉमिक्स आ गया. अब मैं प्री इंजीनियरिंग का स्टूडेंट, उसमें बिजनेस कम्युनिकेशन आ गई, तो वो तो चलो फिर भी इतनी मुश्किल नहीं थी. इंग्लिश भी नॉट अ प्रॉब्लम एट ऑल. मैथ का एक कोर्स था जिसमें बिजनेस मैथ और बिजनेस स्टेटिस्टिक्स थी, वो भी जस्ट टू इजी. फाइनेंशियल अकाउंटिंग का और कॉस्ट अकाउंटिंग की 2 कोर्सेज थे, अगेन वेरी इजी. ओके. मैं फंस गया इकोनॉमिक्स में. अच्छा, उस वक्त लॉ भी, अभी भी लॉ होती है, सीए में लॉ आपको पढ़नी पड़ती है. मैंने तो मर्केंटाइल लॉ पढ़ी थी, उसके बाद कंपनी लॉ सेकेंड ईयर में थी. मगर जहाँ इकोनॉमिक्स की बात थी ना, पहले आरडी में आई डिड सो बैड, मतलब I did very bad. So Okay. and my dreams were like shattering right in front of me कि यार ये क्या मजाक है. मैं तो यहाँ पे अकाउंटिंग पढ़ने आया, ये मुझे इकोनॉमिक्स को पढ़ा रहे हैं. Right. I mean, मेरे दिमाग में ऐसा. Okay. Now if at my age I understand कि यार इकोनॉमिक्स, अकाउंट्स, सबको एक थोड़ा सा एक डाइवर्सिफाइड नॉलेज होनी चाहिए इंसान के पास, और चार्टर्ड अकाउंटेंट के पास होती है. तो I could not manage with it, so I shifted to ACCA. Okay. And I started doing ACCA. Right. अब ACCA के अंदर ना एक ग्लिच आया. समझो मेरी लाइफ का एक ग्लिच था, जिस ग्लिच की वजह से मैं आज यहाँ पे हूँ, वरना आई वुडंट हैव बीन. मतलब एक बड़ा अजीब सी बात है. मैंने जब सीए का ड्रॉप करा, मेरा साल वेस्ट हुआ. वेस्ट तो नहीं हुआ, सही. आई लर्न कि यार चलो चार्टर्ड अकाउंटेंसी में होता क्या है. आई वेंट टू द कोर्स. It doesn't go to waste, of course. It's an experience. It was a learning experience. Yeah, it was learning. And ACCA is generally for 2 years or 2.5, so I wasn't wasting time anyway. ठीक है. तो मैंने क्या करा कि ACCA में जब गया तो मैंने बोला कि सही, आई वांट टू रजिस्टर फॉर ACCA. उसकी रजिस्ट्रेशन सितंबर में जाती है. यू गिव योर पेपर्स इन दिसंबर. आप पढ़ना अगस्त से शुरू कर देते हो. मैंने इंस्टीट्यूट देखा, आई स्टार्ट माई क्लासेस. वही शुरू में अकाउंटिंग बहुत बेसिक सी थी. मैंने चलो यार, मैंने पे भी कर दिया, एंड आई वांट टू गेट अप इन द मॉर्निंग, बी इन अ रूटीन. तो मैं कंटिन्यू करता रहा क्लासेस से. रजिस्ट्रेशन का टाइम आया, इंस्टीट्यूट ने बोला रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिल करें, फीस भरें, आपकी रजिस्ट्रेशन करा देते हैं, बिकॉज यू हैव टू फर्स्ट रजिस्टर योरसेल्फ टू द बोर्ड दैट रन्स द ACCA. राइट. तो मैंने सही है, रजिस्ट्रेशन के लिए भेजी, और पेपर्स मैंने बोला मुझे ये पेपर्स दिसंबर में देने हैं. मैंने फ़ीस वगैरह भेजी और सबमिट करा दिया. समवेयर डाउन इन, आई थिंक ये अक्टूबर के शुरू में था, समवेयर डाउन लेट अक्टूबर, मेरे पास रिप्लाई आया. सबको आता है, जैसे दे टेक 3-4 वीक्स टू गिव यू फीडबैक कि आपका ये रजिस्ट्रेशन नंबर है और ये आपके पेपर्स होंगे. जस्ट लाइक यू केमिस्ट में करते हैं. आप पहले आप फरवरी में, आप अर्ली फरवरी में आप फीस भरते हैं, और फिर आपको उसकी कंफर्मेशन आती है, फिर स्टेटमेंट ऑफ एंट्री आपकी अप्रैल में आती है. तो इसी में हुआ क्या कि उन्होंने मेरी रजिस्ट्रेशन डिक्लाइन करके भेज दी. Which was weird. Yeah, it's weird. Because मैं एक ACCA के इंस्टीट्यूट में पढ़ रहा था, and they saw my results and they said you're good to go. कोई मसला नहीं है. Yeah. Apparently they made a mess. ACCA made a mess. Technical glitch हो गया. Technical glitch ये था कि उन्होंने मेरे O level के इंग्लिश का ग्रेड देखा, which was low at that time. बोला नहीं, this does not meet the criteria. मगर उन्होंने मेरे A level इंग्लिश के ग्रेड को इग्नोर कर दिया था. Okay. I mean they didn't see it. तो जब मैंने उनको फ़ोन करा, आई लिटरली कॉल देम अप एंड आई सेड कि यार, उस ज़माने की बात बता रहा हूँ मैं आपकी, 2000-2001 की. मैं कॉल देम अप. उस वक्त फ़ोन वो नहीं, व्हाट्सएप वगैरह नहीं होता था. आई मेड एन इंटरनेशनल कॉल. मैंने यार, यू डिक्लाइंड माई रजिस्ट्रेशन, व्हाई? आई नीड अ रीज़न. योर O level English grade does not meet our requirement.
मैंने बोला what is your requirement? No, our requirement is this. मैंने बोला do you see my A-level English grade? Have you got it with you? पता है जवाब क्या आया? Give me a minute. उससे फाइल वाइल खोली होगी अपनी, देखा सर पता है इंस्टेंट जवाब क्या था? Oh we didn't see this. Oh sorry we made a mess. मैंने बोला your requirement for O-level grade is this. My A-level grade is this much. Which It's is an A-level over, grade which yeah. is above. Yeah. And I think I meet the criteria very easily. I mean, I'm way above the criteria that you want. So why did you decline my registration? Yeah. Oh, we've made a mess. Okay. And I'm, okay, no issues. Please correct it and send me my registration and send me my statement of entry so that I can give the exam. They said, sorry, वो तो अब time निकल गया है. Excuse me? What are you saying? You're just wasting my 6 months because of your glitch? Sorry, we can't do anything. Only thing that we do is we can pass your registration to the next session, and you'll be automatically be registered. Right. No, what am I supposed to do? Well, sorry, we are extremely probably sorry. were supposed to sue but them. that's the only thing that we can say is sorry. अब मेरी लाइफ में एक जो है ना एक अजीब सा एक पॉइंट आया. अच्छा, I was already teaching in the evening. अच्छा, you were As right. you know, मेरे एक टीचर थे, मेरे जो उस्ताद हैं जो मुझे मैथ पढ़ा चुके हैं, सही अब्बासी. सही. तो वो मुझे कहीं मिले थे और उन्होंने मेरे को बोला था यार तुम्हारी मैथ बहुत अच्छी है, कभी भी तुम्हारे अगर लेट्स सपोज शाम में फ्री हो पढ़ाने का मूड हो मेरे पास आ जाना, मेरे को असिस्टेंट्स की ज़रूरत होती है. तो मैं ऑलरेडी उनके पास असिस्टेंट के तौर पे था. सुबह पढ़ना है ACC का, ACC की स्टडीज़ वैसे इतनी हैवी नहीं थी, तो शाम में चलो यार थोड़ा सा एक्सपीरियंस गेन कर लेते हैं. आई वाज ऑलरेडी टीचिंग. जब ये ग्लिच आया तो मेरा ACC रुक गया. आई हैव टू गिव माई पेपर्स इन मे, सो एंड आई हैव ऑलरेडी स्टडीड द कंटेंट. मैं करूँ क्या? तो मैं कर क्या रहा था कि मैं देर से उठ रहा था और मैं दोपहर को काम पे जाता था. आई यूज्ड टू गो टू द इंस्टीट्यूट असिस्ट माय टीचर. तो जब ये हुआ ना तो मैंने दिस वाज इन 2002 आई थिंक समवेयर. हाँ 2002 में हुआ था ये. सॉरी पूरा एग्जैक्ट मुझे याद है. 2002 के अक्टूबर में हुआ था. सही. तो जब ये हुआ ना तो सरफी ने बोला कि यार, और मैं ऑलरेडी 1 साल दिसंबर 2001 से मैंने पढ़ाना शुरू करा था. तो मैं 8-9 महीने उनके पास पढ़ा चुका था. तो उन्होंने मुझे ऐसे ही बोला कि यार तुम देर से उठ रहे हो. उन्होंने नोटिस करा 1 हफ्ते 2 हफ्ते बाद. बोला क्या तुम लेट क्यों आ रहे हो या तुम नींद में क्यों होते हो? सर इस तरीके से हुआ, ACC की ऐसे मेरा हैंड हुआ. तो मैंने अब शायद अब कुछ करने को नहीं है तो मैं उठता हूँ, यहाँ पे आता हूँ, उसके बाद फिर दोस्तों में चला जाता हूँ. तो फेयर एनफ, माय पेरेंट्स आर आल्सो ओके विद इट कि यार आई एम वर्किंग, आई डोंट हैव एनीथिंग टू स्टडी बिकॉज ऑफ अ ग्लिच. तो हुआ क्या कि उन्होंने बोला कि एक जॉब ऑफर आई हुई है सिटी स्कूल में एंड उनको ग्रेड 10 का मैथ का टीचर चाहिए और वो खुद भी वहाँ पढ़ाते थे. ग्रेड 10 मेट्रिकुलेशन नहीं, ग्रेड 10 O level. So it was 9th 10th 11th ना, तो they needed a teacher for 9th and 10th somewhere like that. सही है. तो जॉब अप्लाई करो. मैंने कहा सर मेरे पास डिग्री तो कोई नहीं है. बोला यार जाओ तुम हम जिस तरह पढ़ाते हो ना मैं देखता हूँ, यू नो हाउ टू टीच, अप्लाई और मेरा रेफरेंस दे देना. तो मैंने अपने दोनों उस्तादों का जो वहाँ पढ़ाते भी थे उनका, और मैंने पढ़ा भी वहीं से था, सिटी स्कूल दरअसल से पढ़ाता. तो मैं गया, उन्होंने बोला डेमोन्स्ट्रेशन देनी होगी आपको. दे ऑल्सो सॉ मी, आई वाज सो यंग एंड एवरीथिंग. मैं उस वक्त क्या 21 का था. तो और मुझे 9th वालों को पढ़ाना है. तो 9th वाले क्या है 16 years old 15 years old. नहीं 9th वाले वर 15-14 years old. 6-7 years. तो खैर इतना बड़ा एज गैप भी नहीं था, 6-7 years. तो मैंने उनको बोला कि डेमोन्स्ट्रेशन देनी है. कोई मसला नहीं, मैं दे देता हूँ, आप मुझे बता दें क्या पढ़ाना है, कहाँ पढ़ाना है. बोला हाँ हम आपको टॉपिक देंगे और आपको विल गिव यू टाइम टू प्रिपेयर, यू कैन गो इन द लाइब्रेरी एंड प्रिपेयर. एंड दैट वाज शॉकिंग फॉर मी बाय द वे, क्योंकि मैं तो एज अ जॉब इंटरव्यू तो पहली दफ़ा गया था ना. अच्छा मैं टीचर से, अब जो उन्होंने बोला कि प्रिपरेशन का टाइम, तो मैंने बोला किस चीज़ की प्रिपरेशन का टाइम? उनको भी समझ में नहीं आया, मुझे भी समझ में नहीं आया. बोला नहीं आपको हम टॉपिक दे रहे हैं तो आपको प्रिपेयर तो करना होगा ना उसके लिए. क्यों प्रिपेयर करना होगा? अगर मैं यहाँ पढ़ाने आया हूँ इसका मतलब मुझे पता होना चाहिए. अच्छा वो भी हैरान कि ऐसे भी तो होते कुछ, और मैं भी हैरान कि यार ये टाइम भी देते हैं. मतलब इट वाज अ क्रॉस. एंड द लेडी मिस नीलोफर बेग हु वाज टेकिंग दैट इंटरव्यू विद मी, तो वो भी शौक में थी बहुत शिकायतों में. तो वो शौक में थी. उन्होंने बोला, मैं गया डेमोन्स्ट्रेशन दी और फिर मैं उस पर गया. अगले दिन फ़ोन आ गया एंड आई वाज स्टिल कंफ्यूज कि वेदर आई शुड टेक द जॉब और नॉट. पर वहाँ से जो शुरू हुआ है ना आज तक फिर आज से चलता हुआ है. चल रही. सही. अच्छा, so then there are some students
जो कि मैथ से हमेशा they're always frightened, whether it's O level or A level. Why is that so? Why is math so intimidating for a few students? एक बहुत इसकी मैं I'll summarize it for you. इसकी बड़ी simple सी है. Since I've been teaching for 23 years, so I've come across a lot of students like that, and who have a fear in math. But I've tried to get the fear out. देखिए एक चीज़ है बचपन में अगर आप बचपन को छोड़ें अपने बचपन को छोड़ें आजकल के अगर आप छोटी जनरेशन को देखेंगे सबके घर में या तो कजन्स होते हैं छोटे या छोटे भाई बहन होते हैं या व्हाटएवर दे कैन लिंक टू बच्चा ना ABCD पहले नहीं सीखता वो 1 2 3 पहले सीखता है Okay. He understands 1 2 3 he'll pick one thing two things and think ABC letters come afterwards Okay. कुछ वर्ड्स तो हम लोग बेसिक मामा पापा वो तो शुरू बोलते होते हैं वो एक लैंग्वेज है बट टेक्निकली जब वो ग्राउंड रियलिटी पे जाता है वो नंबर्स पे आता है और आप स्टूडेंट को देखोगे ना कोई भी बच्चे को देखोगे ना ही इज़ वेरी गुड विद नंबर्स वो अल्फ़ाबेट्स वगैरह में थोड़ा सा फिर भी स्ट्रगल कभी कभार कर सकता है वर्ड्स को रीडिंग करने में बट नंबर्स वो जल्दी पिक करता है हर छोटा बच्चा इज़ गुड विद नंबर्स मेजॉरिटी होते हैं सम डू बट जनरली नहीं होता तो ऐसा क्या होता है मैं ये चीज़ नोटिस करता हूँ कि यार सब जब व्हेन दे वर किड्स स्मॉल दे वर गुड विद नंबर्स बट व्हाट इज रॉन्ग विद नंबर्स नाउ बिकॉज टेक्निकली इट्स टू थिंग्स आइदर यू गुड विद थ्योरी और यू गुड विद नंबर्स एंड सम आर गुड विद बोथ सम आर गुड बैड विद बोथ दैट्स समथिंग एल्स तो इंटीमेटिंग जो मैथ्स जो जिसमें जो स्ट्रगल करते हैं ना अगर आप उन स्टूडेंट से भी पूछोगे ना एक फीडबैक लोगे या उनके पेरेंट्स से 7th तक मेरा बच्चा बहुत अच्छा था मैथ में एकदम से उसको पता नहीं क्या हुआ वो एकदम से कुछ हुआ नहीं ये आइदर रन अक्रॉस अ वेरी बैड एनवायरनमेंट कोई 1 साल है उसने क्लास शिफ्ट करी और ही केम इनटू अ वेरी बैड एनवायरनमेंट वेरी कुड नॉट स्टडी तो उसका जो 1 साल का गैप आया उसका दिमाग ही हट गया मैथ से नंबर्स यू हैव टू स्टे कनेक्टेड या तो उसको कोई एक ऐसा टीचर मिला विच ही कुड नॉट अंडरस्टैंड विच ही ट्राइड टीचर नहीं समझा पाया कुछ टीचर के पास भी एक क्लास होती है पूरी अगर लेट्स सपोज वो कोशिश करता है एक स्टूडेंट के साथ सम कैन नॉट गिव इंडिविजुअल अटेंशन तो उसमें कुछ जो है ना वो जस्ट दे पास ऑन Yeah, but then the same thing can be said for English. Yeah, for any of this देखो subject. इंग्लिश या में तो science के वी लिए भी स्टिल कह सकते कम्युनिकेट राइट हैं। For science के लिए कह सकते हैं। साइंस के लिए कह सकते हैं मगर साइंस आती है 9th और 10th में ना 7th 8th में भी जो साइंस वगैरह जो है ये मैथ खराब होती है ना वो स्टूडेंट्स की जिनकी खराब होती है वो होती है 8th में Okay. 9th में बिफोर द साइंसेज एंड फिजिक्स एंड केमिस्ट्री स्टार्ट ऑफ Right. अगर आपने जनरल साइंस को इतना अहमियत नहीं भी दी है तो आपको फिजिक्स का टीचर और केमिस्ट्री का टीचर आपको पिकअप कर लेगा लेकिन मैथ नहीं कर सकते। मैथ तो कंटिन्यूस स्टेपिंग है ना Continuous करती है। कंटिन्यूस स्टेपिंग Building है blocks हैं। बिल्डिंग ब्लॉक्स है Right. Okay. अब अकाउंट्स से अगर एक मिसाल लेता हूँ अकाउंट्स की तो वो तो आकर शुरू ही 10th में हो रही है या 9th में हो रही है इन सम स्कूल्स वो कैसे खराब हो सकती है आपकी you want to start off Yeah. until unless you get not a decent teacher or let's suppose you do not understand the teacher that's something else मैथ के साथ ज़्यादातर मसला ही आप किसी भी पेरेंट्स से आप सैंपल उठा कर देख लो Yeah. मैं कर चुका हूँ इसकी मैथ खराब क्यों है सर ये 7th तक फर्स्ट सेकंड आता था ये मैथ के इसके अंदर 90 मार्क्स आते थे अब देखिए ये 40s लाता है तो इट वाज अ गोइंग डाउन हिल So it could be an external factor. बच्चा it कह could रहे be हैं कि it could generally be बच्चा सही trauma एक flow in में the होता है। situation or in his life any Family, trauma in his whatever. life it Yeah. could be external factors it could be It could be teacher, it could be whether he moved something from else. one school to another or Yeah. it could be कि यार उसके सेक्शन चेंज हुआ था उसके या तो दोस्त डिस्कनेक्ट हो गए because friends do play a huge part in your Environment एक life role होता है। so it could be it's not math Okay. क्योंकि ऐसे इसको स्टूडेंट्स जिनका फियर होता है और वो जब ग्रेड 11 के वक्त वो आते हैं आई मीन आई गिव आई हेल्प देम इन द इवनिंग्स एज वेल तो आई स्टार्ट फ्रॉम द बेसिक्स आई हैव टू स्टार्ट फ्रॉम द बेसिक्स कीपिंग इन माइंड कि यार मुझे नहीं पता किसको क्या आता है तो कुछ की मैथ सही हो जाती है एंड देयर आफ्टर यू नो गोइंग थ्रू इंटायर कोर्स अगेन Yeah. जैसे कि शुरू से समझाओ तो उनको समझ में आना शुरू होता है और वो बोलते हैं कि यार हम क्यों अटक रहे थे तो वो अटक इसलिए रहते हैं बिकॉज इट्स अ कंटिन्यूस थिंग तो बीच में कोई भी गैप आएगा तो वो फंस जाएगा। तो ऑब्वियसली फंसेगा Got it. अच्छा, what do you think? You have been teaching A level for a while now. What do you think is that one mistake that the A level students still continue to make, and something that you would want them to correct? We're taking it too lightly. Too tightly. Too lightly. Too lightly. Okay. Too That's lightly. the only thing. I And I mean, thought A levels, yeah, it gets you into a university.
and not just universities in Pakistan, gets you into universities across the world. Right. I mean, Cambridge is a board. हम लोग कैम्ब्रिज का पेपर देते क्यों हैं? या कैम्ब्रिज के बोर्ड पे हम लोग जाते ही क्यों हैं? सो दैट की इंटरनेशनल एक्सेप्टेंस हो, राइट? Yeah. तो जब इंटरनेशनल एक्सेप्टेंस की बात कर रहे हैं तो इसका मतलब है दैट लेवल इटसेल्फ इज गोइंग टू बी टफ. Okay. It is getting you into universities which you hear of. Yeah. Yeah. मतलब बिकन हाउस की ही एक बात है, आपको मैं बताता हूँ. हमारा एक बिकन हाउस का एक कॉलेज प्रोग्राम होता था डिफेंस का, अभी भी है. आई वॉज पार्ट ऑफ दैट. आई टॉट देयर 5 years as well. Okay. तो वहाँ पे एक स्टूडेंट, मुझे सही उसका नाम याद नहीं है, बट आई मेरे सामने की बात है. Okay. बिकन हाउस की स्टूडेंट, ए लेवल्स की स्टूडेंट, शी गॉट इनटू MIT Right. with 110% scholarship. 110% Right. means उसको 10% allowance Allowance मिलती थी मिल और रहा था ट्यूशन उसको. पूरी फ्री थी. Yeah. 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 अब एक बिकन हाउस की स्टूडेंट कमिंग फ्रॉम कराची गोइंग इनटू MIT, getting admission into MIT with 110% scholarship means a huge thing. Yeah. आज MIT is the top university in the world. For It's not easy. Pakistan, Yeah. तो अब आप खुद सोचो ना, तो कैम्ब्रिज का करिकुलम, इफ इट गेट्स यू टू अ यूनिवर्सिटी जस्ट लाइक MIT व्हिच आई हैव सीन, वो डिफिकल्ट तो होगा ना. तो ए लेवल्स में एक चीज़ का स्टूडेंट को हमेशा एक चीज़ का ख्याल रखना चाहिए, इट इज़ अ डिफिकल्ट लेवल. That's level why से it's बहुत called फर्क है. advanced level. मैं हमेशा स्टूडेंट को ये बोलता हूँ, पेरेंट्स को तक ये बताता हूँ कि यार अगर इसका O level मैथ में B है, थ्रेशोल्ड्स होते हैं, प्लीज डू नॉट अंडरस्टैंड कि B इज 80% अबव. Yeah. ये स्कूल का B नहीं है, ये कैम्ब्रिज का B है, वो थ्रेशोल्ड पे है. आजकल O level मैथ का थ्रेशोल्ड इन ऑर्डर टू गेट अ B इज लाइक 51%, 52%. Right. So if an O level math student has gotten a B, Because it's सही relative he's, grading. बिल्कुल. believe me, from my perspective, he's just managed the minimum. Yeah. Relative grading. Relative, yes. So वो A levels कर तो सकता है, but now he really needs to work. Yeah. 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 अगर कोई स्टूडेंट बोलता है सर मैं B लेकर आया हूँ और मैंने बहुत बड़ा कमाल करा है, Yeah. मिसअंडरस्टैंडिंग. ही ऑल्सो नोज, क्योंकि जो स्टूडेंट O level मैथ पढ़ रहा है इस वक्त भी, उसको पता है थ्रेशोल्ड्स होते हैं. और वो जो उस अच्छा, वो examination थ्रेशोल्ड center होकर में जब लोग देखकर बैठे बड़ा खुश भी होता है. इस वक्त जितने भी O level मैथ के स्टूडेंट्स हैं जो ऑडियंस में होंगे, if you're looking at the thresholds, you know getting a B and getting an A is easy comparatively to your schools. Yeah. क्योंकि स्कूल में A लाने के लिए you needed 90%, but कैम्ब्रिज में A लाने के लिए you don't need 90%, you need somewhere around 75%. 70-75% according to the thresholds that going on for the past Thresholds years. vary as well. Yeah, very, but past couple of years ठीक है. after COVID they've drastically changed. अच्छा. Okay. तो बिकॉज हमारे पास ऑनलाइन फैक्टर्स आ गए. स्टूडेंट बोलता है मैं ऑनलाइन पढ़ लूंगा, मैं यूट्यूब से पढ़ लूंगा, क्योंकि अब कंटेंट भी बहुत ज़्यादा आ गया है. सही है, कंटेंट यूट्यूब पे बहुत है मैथ का. अ लॉट ऑफ टीचर्स हैव गिवन देयर इनपुट. अच्छी बात है. आई मीन पहले हमारे पास ये एक्सेस नहीं होता था. तो अगर स्टूडेंट का किसी फैमिली इमरजेंसी की वजह से या मेडिकल रीजन की वजह से कोई टॉपिक रह जाता है, वो स्कूल में नहीं पढ़ पाया, तो व्हाट शुड वी डू? वो आई मीन देयर इज अ सपोर्ट. आई मीन यू शुड ऑलवेज लुक एट द गुड साइड ऑफ थिंग्स. Yeah. Yeah. कि कंटेंट जो हमारे पास है वो अवेलेबल है, बट उसकी वजह से फ़र्क भी आया है. Got it. तो टेक्निकली A levels इज challenging. Yeah. The students should be prepared for it. As Dishant, I mean, mashallah, you have a very vast experience of teaching Cambridge, O-level, A-level students. So once they graduate with their A-level, so what are some of the university options you have seen your students taking undergrad? Undergrad, they've That's I've seen students taking a lot of options. I've been, since we are teaching so many years, and I mean I've taught thousands of students. तो दे गो टू नास्ट. अभी भी हाल में भी एक स्टूडेंट मेरा है वहाँ पे जो 2 साल पहले गया है नास्ट इस्लामाबाद. दे गो टू GK पे जाते हैं. हाँ, GK गुलाम इस्लाम खान यूनिवर्सिटी में भी जाते हैं. मेरा एक पुराना स्टूडेंट गोल्ड मेडलिस्ट है वहाँ का, तो और वो UK में बेस्ड है और मेरे साथ अभी भी कनेक्टेड है. Right. तो वो क्योंकि उसने वॉरिक से मास्टर्स करा था. ठीक. तो नास्ट हो गया, GK हो गया, IBA, LAMS, Zabist, IOBM, and But do they only go for engineering? Yeah. नहीं, Other खान, fields I mean as they go well. for medicals, याउद्दीन भी जाते हैं. Vast different fields. Yes, लिमिटेड है. अब तो लिमिटेड नहीं है, बट स्टूडेंट के पर्सपेक्टिव से अभी भी लिमिटेड है.
मतलब जैसे हमारे ज़माने में बीबीए होता था, अब तो बीएससी इन अकाउंटिंग भी होता है, अप्लाइड अकाउंटिंग भी होता है, Yeah. एसीएफ भी होता है, अकाउंटिंग एंड बिल्कुल फाइनेंस बिल्कुल में भी कर सकते absolutely. हो आप, मार्केटिंग में कर सकते हो, सेल्स में कर सकते हो, Even आप LLB, इकॉन you एंड can go मैथ for कर LLB. सकते हो, तो Yeah. देयर आर मल्टीपल ऑप्शंस। Yeah. आप सिर्फ इंजीनियरिंग जो है वो आपके पास इंजीनियरिंग के कितने ऑप्शंस हैं, मैकेनिकल है, सिविल है, आपका बायोकेमिकल में कर सकते हो आप इंजीनियरिंग, आप इंजीनियरिंग उसमें इलेक्ट्रिकल में कर सकते हो, देयर आर लॉट्स फील्ड। स्टूडेंट्स के पास ऑप्शंस हैं, पाकिस्तान में हैं, अब्रॉड है। Yeah, yeah. यस वी डू नीड मोर ऑप्शंस अपना इन पाकिस्तान। Right, एजुकेशन हैज़ टू, it's below, right. मतलब the population that we have and the universities that we have, it's not in comparison। Yeah, जब भी yeah, हमारा yeah. काफ़ी सारा बच्चा जो है वो बाहर पढ़ने के लिए जाता है, बिल्कुल. प्लस एक होता है ग्लोबल रैंकिंग। स्टूडेंट के होता है ना कि यार मैं पढ़ रहा हूँ, अगर लेट्स सपोज तो Yeah. मेरी एक्सेप्टेंस, या मुझे बाद में पढ़ने के बाद मुझे अगर लेट्स सपोज बाहर जाना है तो मेरी क्या वर्थ होगी, या Validation क्या मिलेगी. क्या वैलिडेशन होगी, या वेयर डू आई स्टैंड। Yeah. तो इट्स सॉर्ट ऑफ थोड़ा सा सैड होता है देखना कि जैसे आईबीए जैसी यूनिवर्सिटी है, तो इट्स, आप उसकी वर्ल्ड रैंकिंग देखो तो 500 समथिंग में आती है, which was shocking to me because मेरे हिसाब से IB is a good university. One of the best. It's a good option. Yeah. It's a very good Yeah, option. yeah, मतलब अगर मेरा बेटा जो है वो अगर इंजीनियरिंग नहीं कर रहा होता और वो उसमें बिजनेस फील्ड में होता, तो मैं उसको लाजमी IB भेजता, मैं बाहर नहीं भेजता उसको, क्योंकि द कॉस्ट ऑफ गोइंग आउटसाइड इज क्वाइट अ लॉट, यू नो, Quite a lot. कंपैरेटिवली। As we have discussed. मैं बोलता यार IB से पढ़ो, Yeah. आप कॉर्पोरेट फील्ड में 2-3 साल का एक्सपीरियंस गेन करो, फिर आप मास्टर्स के लिए बाहर जाओ। Get a local experience, do the hard work, and then go for the international exposure. And उसके बाद international exposure के बाद, if you want to stay there, if you get a job, or you want to come back, it's up to you. Okay. मेरा दोस्त है, मेरे काफ़ी इस तरह कॉर्पोरेट भी दोस्त हैं। मतलब मेरा एक दोस्त है जो फिलिप मॉरिस जैसी कंपनी का भी सेल्स हेड रह चुका है। मेरा एक और दोस्त है जो अभी डायरेक्टर लेवल पे यूनिलीवर में रह चुका है। तो देयर आर मल्टीपल, Right. तो वो यहाँ पे हैं, दे आर डूइंग वेरी वेल, एंड आप उनसे बात करो, दे पता चलता है। आई मीन नॉट बीइंग कि मेरे दोस्त हैं, बट एक पता चलता है यार, एक इंसान के वैल्यूज़ का पता चलता है, उसके कंपोजर का पता चलता है कि यार ही इज सो कंपोज्ड एंड यू नो इज सो डिसिप्लिन्ड एंड एवरीथिंग। Yeah. मतलब आप बस बात करते हो, आपको पता चलता है यार एजुकेटेड आदमी से बात कर रहे हैं। बिल्कुल, देयर इज ऑल स्टडी फ्रॉम आईबीए। Okay. अच्छा कमाल की बात है, Right. मतलब मेरे एक दोस्तों की एक है गैदरिंग जो सारे आईबीए पास आउट, मैं नहीं था बट बहुत सारे थे, ठीक है. डिफरेंट कंपनीज। तो कहने का मकसद है कि यूनिवर्सिटीज़ है पाकिस्तान में, बहुत सारी हैं, सम आई एम नॉट इवन अवेयर ऑफ, बट देयर आर, एंड But what about situations, Zishan sir, जहाँ पे we've also come across students who wanted to go outside Pakistan, but for some reason, financial ties, they weren't इसके able लिए, to, हाँ, but still wanted to get an या international बिकॉज degree. इसके लिए जैसे एक्सटर्नल प्रोग्राम्स है, जैसे बिग का एक्सटर्नल प्रोग्राम है, और इस तरह के एक्सटर्नल प्रोग्राम्स होते हैं, एंड दे बीन इंट्रोड्यूस्ड फेयरली बिफोर एज वेल। Right. तब मुझे याद पड़ता है कि आज से 10 साल पहले बेव्यू ने स्टार्ट करा था यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन का प्रोग्राम। दैट वाज द फर्स्ट वन दैट केम टू The पाकिस्तान, external program. एक्सटर्नल प्रोग्राम। अब तो इस तरह से डाइवर्सिफिकेशन बढ़ गई है, एंड आई अटेंडेड बिग का जो होता है कि लिवरपूल जॉन मोर की यूनिवर्सिटी का एक्सटर्नल प्रोग्राम है, एसेक्स का है। बिल्कुल. आई मीन इट्स अ गुड अपॉर्चुनिटी Yeah. in terms के if a parent does want their son to have a degree abroad, which is a UK degree, which is fair enough. Cambridge is also a UK certification. बिल्कुल ऐसे ही. तो अगर वो बोलते हैं कि नहीं, हमने अगर बच्चा कैम्ब्रिज से पढ़ रहा है और अगर यूके की सर्टिफिकेशन है उसके पास, वो लेवल्स ए लेवल्स की, तो वाई नॉट कि उसकी अंडरग्रेड की भी यूके की हो, बट द कॉस्ट डज नॉट मैच। Yeah. तो सही है, यूके प्रोग्राम्स फॉर बैचलर्स इज वेदर यू डू मैकेनिकल इंजीनियरिंग, माय सन इज डूइंग मैकेनिकल इंजीनियरिंग, Right. Right. तो या यू डू अ बिजनेस प्रोग्राम, इट्स 3 years, बिकॉज वो बेसिकली द वे रीजन फॉर 3 years इज O levels is grade 11, so A level 2 years is grade 13. So you've done 13 years of study on record, and then you need to do 3 more because US का system ऐसा चलता है, their high school is 12 years and their graduate program is 4 years. So globally they come into the same par. 16 years of education is what a graduation Exactly. basically means. Absolutely. तो UK में इसलिए 3 साल होता है। Because by the time you're done with your A If level, let's suppose like you said, 13 years of education financial pressures हैं, या कोई और रीजन है कि अभी बच्चे को नहीं भेजना, he is not mature enough, what parents की अलग अलग
माइंडसेट्स होते हैं। तो वो ये अंडर ग्रेड प्रोग्राम्स इस तरह के एक्सप्लोर कर सकते हैं कि 2 साल स्टूडेंट को यहाँ पढ़ाएं, बच्चा उनका यहाँ पढ़े, वैसे तो 2 साल यूनिवर्सिटी में जाएगा, उसका मेच्योरिटी आएगी, उसके अंदर एक्सपोजर आएगा, और उसके बाद 3rd ईयर के लिए वो उसको बाहर भेजें, ट्रांसफ़र करा दें। और बाहर जाकर फिर उसको वही अपॉर्चुनिटीज़, आपको शायद पता होगा कि यूके में एनीबडी हु ग्रेजुएट्स इवन ही कम्स इन द लास्ट ईयर और लास्ट 6 मंथ, लास्ट सेमेस्टर करने भी आता है, तो ही विल हैव द अपॉर्चुनिटी टू गो थ्रू द 2-year वीजा दैट ही विल गेट। वीज़ा आपको तो एक पेरेंट के उस तरह ये भी होता है कि यार सही है, मैं 1 साल भेज रहा हूँ उसको बाहर, 2 साल वो इधर पढ़ रहा है, 1 साल के बाद वो 2 साल वहाँ पे रहकर he can just while he's looking for a job he can do odd jobs, अपना खर्चा भी निकाल सकता है, and he'll have the exposure। जब वो खुद जाएगा बहुत सारी चीज़ें फ़र्क आती है। I've seen changes in my own son। जाहिर सी बात है, जब आपको खाना भी खुद ही अरेंज करना है, आपको क्लीन भी खुद ही करना है, आपको मैनेज भी खुद ही करना है, आपको सुबह भी खुद ही उठना है, आपको सारा कुछ खुद करना है, and you're becoming independent, उससे फ़र्क पड़ता है। तो अंडर ग्रेड प्रोग्राम्स अ लॉट, पाकिस्तान में भी बहुत सारे हैं, अब्रॉड के भी बहुत सारे ऑप्शंस हैं, एक्सटर्नल प्रोग्राम्स भी हैं। बिल्कुल। एक्सटर्नल प्रोग्राम्स इस तरीके से भी हैं कि अगर आप यूएस नहीं जाना चाहते हैं तो यूएस की यूनिवर्सिटीज़ आपकी दुबई में भी हैं, दे हैव ऑफसेट कैंपसेस। बिल्कुल, ब्रांच कैंपस। मलेशिया की भी यूनिवर्सिटीज़ हैं, मलेशिया में भी आपके पास प्रोग्राम्स हैं। एजुकेशन इज़ अवेलेबल। बिल्कुल बिल्कुल। अब से हमारे यहाँ पे इतना माइंडसेट नहीं है। क्या एजुकेशन, क्या मतलब बिजनेस वाइज जिसका बिजनेस है वो सोचता है यार बेटा है मेरा, बड़ा है, सही बिजनेस में आ जाए। टेक्निकली एजुकेशन शुड बी गिवन अ प्रायोरिटी। बिल्कुल। इफ लेट्स सपोज देयर आर सर्कमस्टेंसेस आई हैव सीन, मतलब मैंने अच्छे स्टूडेंट्स, मतलब ब्राइट स्टूडेंट्स, क्या कर रहे हो आगे, बाद में मिले, सर मैं बाबा के साथ काम करूँ, मैंने बोला नहीं करो यार, sharp student, extremely sharp student, should have ended up in a very good university, okay, had the resources, क्यों नहीं गए यार, क्यों नहीं पढ़ने गए? नहीं, वो बाबा की तबीयत थोड़ी ऑफ एंड ऑन रहती है, या बाबा का काम बहुत ज़्यादा है, प्रेशर बहुत ज़्यादा है, तो आई वांटेड टू हेल्प। दैट्स फेयर, दैट्स एक्चुअली, दैट्स बिकॉज फैमिली इज द फर्स्ट प्रायोरिटी, सॉरी टू से, बट no, absolutely. Before anything else, family is the first priority. Yeah. Second comes the education. Family comes first. As a second is education. Third is your hobbies and whatever your passion is. Yeah. Once you have the education, then you can follow your passion. So education. And I think, for students like them, first of all, I have a lot of respect for such students who make decisions like these. Because even for me and for many of the people I know, family comes first, absolutely. But alongside the responsibilities that you have from the family, programs like such, where if you intended to go for an international degree program or international certification of the sort, so what you can pursue with us, and continue working with the dad, continue working for the family. Yeah, you at least you get the content. Yeah, you don't get the exposure. Of course. But at least you're improving yourself. You're learning something. As long as you're learning something, you're doing okay. Absolutely. Whether it's a business trade, so you're trying to understand the market. As long as learning does not stop. Yeah, you're doing something. You're doing something in life. You're progressing. As simple as that. Productive. Well, thank you very much, Zishan Sir. It's been such a privilege for me to have shared this platform with you. Sure. I think we've spoken about some of my concerns as well that I've been carrying from when I used to be in A-level mathematics. And particularly the question that I asked you about why some students find it difficult, because I also found it difficult when I was going through my O-level, but I took it in A-level as well. Yeah, you can always overcome those difficulties. Believe me, as a student, it's just an advice that if you want to overcome any difficulty in life, it's not just math. You start going to the root of that. Yeah. Go to the root cause. Try to fix the root first. Yeah. And then move up. And that's the way to do it. That's how it goes. हम किसी काम में फंस जाते हैं, हम क्या करते हैं? Go back to the basics. Let's start from go back to the start and figure out what we did wrong, or let's just do it all over again. Yeah, it's not simple as that. Bilkul Singh, bilkul. Well, thank you very much, Zishan Sahab, and thank you to all of you for joining us for this conversation. I'm sure many of your concerns would have been addressed as well. And to the point where we were discussing some of the university options once you're done with your A-level and all, while there are some remarkable university options within Pakistan and outside as well, but this is where the transnational education comes in through Beacon House International College. We're partners with University of Essex and University of Kent, Liverpool John Moores University and University of London. And we offer some remarkable high-ranked bachelor programs with them.
which are ACC recognized too. So while you are looking up universities and when you're also browsing different programs, make sure you're also visiting www.pic.edu.pk. Thank you very much, and we'll see you soon in another conversation. Take care. Allah Hafiz.